स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? इस पे हमने जो है स्टार्ट कर दिया था इस बुक को, और इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। अब जो है मैंने आपको इससे पहले जो बताया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मतलब क्या होता है, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can satisfy our needs, they are known as resources, but along with that there are certain requirements which they have to fulfill, and first among them was technologically accessible, economically feasible was second one, and culturally acceptable was the third one. So all of you will go through this definition very carefully. Then second part which I discussed with you was the process of transformation. That is the relationship between, I basically explained you about this triangle, that how human being is related to technology, physical environment, and institutions, how all they interact with each other to create different types of resources. So this can come in the examination, that how what is the interdependence, or what is the interrelationship between human beings, technology, nature, and institutions. So in that you have to answer all, you have to write about all these paragraph. Now the next one is your ये जो आपका paragraph है, it is also very important from here. Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? Now in this paragraph you can see that one question has been asked to you, like question इसमें ये पूछा गया है कि do you think that resources are free gifts of nature? क्या जो resources हैं वो हमें nature ने free में दे रखा है जैसा सब लोग सोचते हैं? Yes or no? क्या आप मुझे आंसर बताएंगे इसका? कोई बच्चा बताएगा? No, ma'am. No, ma'am. तो आप can you explain me how resources are not free gifts of nature? What you Ma'am, can say because upon? when human being use a natural resource, then it will be a resource. Okay, very good. Who gave the answer? Ma'am, Swati Rawat. Yes, Swati Rawat. She has given very good answer. That resources, natural things are nothing without human beings. When human beings they work on the natural things, then only they become resources. So they are not freely available in the environment. They are just a natural thing if they are not used by human beings, but they become resource only and after when they are used by human beings. So we have to work upon them. हमें उनके ऊपर काम करना होता है, तब जाके वो resources बनते हैं. Just like I gave you example in the previous class, like land, soil, water in the river, or forest. Alright, वो अपने आप में they are just natural things. वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब मनुष्य उसके ऊपर काम करता है, when we work on them, when we transform them into valuable things, then only they become resources. Then only they can satisfy human needs and requirements. So ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है, लाइक इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ रिसोर्सेज आर द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो रिसोर्सेज है हाउ दे आर फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब कि दे कैन ओनली बिकम रिसोर्सेज आफ्टर दे आर वर्कड अपॉन बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है ना? तो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही जो है कोई भी चीज रिसोर्स बनती है, ह्यूमन नेचुरल थिंग, नहीं तो उससे पहले वो रिसोर्स नहीं होती. तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है ये उस पर लिखना पड़ेगा कि हाउ रिसोर्सेज आर फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो अब जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? देन योर आंसर विल बी नो. दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, बट दे बिकम रिसोर्स only when they are worked on by the human beings. Resources are function of human activities. देखो मैं यही क्वेश्चन तुम्हें बता रही थी, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. मैंने जैसे आपसे कहा कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड में कुछ भी जो है आपसे बना के पूछ सकते हैं. तो योर क्वेश्चन इज हाउ रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. सो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है, जो भी कार्य करता है, उससे जो है हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फार्मर्स होते हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद द सॉइल, व्हेन दे डू टिलिंग ऑफ द सॉइल, व्हेन दे पुट वाटर इन द सॉइल in the form of irrigation, then when they use seeds, chemical fertilizer in the soil, then only production takes place. ठीक है, तो इसमें किसका इंटरेक्शन हो रहा है? ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन हो रहा है विद द लैंड एंड सॉइल. तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे आपका यहाँ पे एक ह्यूमन बींग है, ठीक है,
एक तरफ ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लैंड। तो जब ह्यूमन बीइंग लैंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब जाके ये लैंड क्या बना, रिसोर्स। ये सॉइल यहाँ पे जो है वो क्या बना, रिसोर्स। देन ओनली सॉइल एंड लैंड बिकम्स रिसोर्स। अगर इस पे ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन नहीं होगा, तब ये लैंड जो है आपका किसी काम का नहीं है, हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हेन ह्यूमन आर एक्टिवली वर्किंग, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज जो हैं वो लैंड के साथ हो रही है, तब जाके ये लैंड आपका रिसोर्स बन रहा है। इसमें जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं ट्रैक्टर से या फिर फौड़े से। इसमें क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, सीडलिंग्स डाल रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, तब जाके खेती हो रही है और क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे आपके क्या रखा होगा, आयरन ओर। आयरन जो है जमीन के अंदर दबा हुआ है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स इसको नहीं निकालेंगे तो ये आयरन कभी ऊपर नहीं आएगा, और ना ही इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द स्टील फॉर्म, एंड इट कैन नॉट बिकम अ रिसोर्स। ओनली व्हेन ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द लैंड, वो उसे उसमें गड्ढा करते हैं, इसमें से आयरन को निकालते हैं, तब जाके जो है आयरन क्या बनता है, रिसोर्स। सो मोस्ट जो कहने वाली बात ये है कि ओनली व्हेन ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट natural things, then only they become resource. Without human beings, nothing present in the nature can be converted into a more valuable thing, and they cannot become a resource. So you can write this answer in your own words also if you know the correct अगर आपको लैंग्वेज सही से पता तो आप लिख भी सकते हो. So human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. So हमारे environment में जो भी material available है उसको वो क्या करते हैं, resources में convert करते हैं और उनको use करते हैं. ठीक है. अब लकड़ियां जंगल में पड़ी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं, मनुष्य क्या करता है, उन पेड़ों को काटता है, उसको टिम्बर में कन्वर्ट करता है, फिर उसका फर्नीचर बनाता है, बेड बनाता है जिसपे हम सोते हैं. देन हम उसी से पल्प बनाते हैं, उससे पल्प जो होता है उससे हम जो है पेपर बनाते हैं, बुक बनाते हैं, और उससे हम पढ़ाई करते हैं. ठीक है. हमने लैंड को, सॉइल को यूज किया, उसके बाद हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया जिसको हम खाते हैं, यूज करते हैं. तो मनुष्य जो है डिफरेंट चीजों से इंटरेक्ट करता है और उसके बाद उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है. तो ये आंसर जो है ये आपको लिखना है. एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए क्योंकि एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू यूज एग्जाम्पल इन योर आंसर्स. तो विदाउट एग्जाम्पल्स जो है, क्योंकि एग्जाम्पल आता है कि हाउ यू विल जस्टिफाई दिस लाइन, गिव विद एग्जाम्पल, ऐसे करके. ठीक है. तो यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ वी विल सी. सो इन दिस आई हैव टेल यू, आई हैव यू नो, मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चंस इस पे आपके ऑलरेडी बन चुके हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट इज रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 1 बन गया इतने में ही. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बना, interdependence between nature, human beings, institutions and technology. तो ये क्वेश्चन कैसे भी बना के आया जा सकता है, लाइक हाउ ह्यूमन बींग्स दे क्रिएट, दे इंटरेक्ट विद द नेचर एंड क्रिएट रिसोर्सेज, प्रूव देम. तो इस तरह से करके ये आ सकता है. तो इसका आंसर ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया और ये डायग्राम आपको बनाना है. देन थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये है थर्ड क्वेश्चन आपका, जिसमें क्वेश्चन क्या होगा, विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में होगा यहाँ पे, resources are a function of human activities, justify the statement giving suitable examples. तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इतने में हो गए, बन गए. ठीक है. Now next topic is these resources can be classified in the following ways. Now we will one by one see the classification of the resources. Now before going into the classification, first we will see that all these classification are on some certain basis. कुछ आधार होते हैं, उनके बेसिस पे, उस आधार के बेसिस पे जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं. Alright. So in the examination they will not, they can or they cannot ask like maybe they will not ask directly in the examination like differentiate between biotic and biotic, or renewable or non renewable. They can ask you in indirect form, like on that to classify resources on the basis of exhaustibility or on the basis of origin. मतलब डायरेक्टली आपसे बायोटिक एबायोटिक ना पूछकर, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ना पूछकर, इंडिविजुअल कम्युनिटी ना पूछकर, वो आपसे क्या कर सकते हैं, दे कैन आस्क यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्लासिफाई द रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिफरेंट बेसिस, एंड ऑन दोज बेसिस व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट. सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, जिस तरह से रिसोर्सेज बनते हैं. Alright. So on the basis of origin, there are 2 types of resources. One is biotic and the other is abiotic. I think all of you must be knowing about this. Second is on the basis of exhaustibility. And remember, exhaustibility मतलब exhaust means खत्म होना, समाप्त होना.
ठीक है। एग्जॉस्ट होता है ना कि आप यार मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कि अब मेरे अंदर की जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, है ना। तो बेसिकली द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट इज दैट एंड, खत्म होना, खत्म होना है या नहीं होना है, ठीक है ना। सो एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, बिकॉज देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज जो है जो विच आर गोइंग टू एंड वेरी सून, and there are certain resources which are never ending. We can use them again and again for a long period of time. So on that basis there are two types of resources, renewable and non renewable, जिसको हम हिंदी में समाप्य और असमाप्य ऐसे कहते हैं. Third, on the basis of ownership. Ownership means स्वामित्व. Who is the swami? Swami means owner कौन है? For example, in the house in which you are living is your individual property, because it is maybe in the name of your parents, your mother, father, your grandfather. So that is individual property. But जैसे आप ये अपने स्कूल के सामने आपका जो ग्राउंड है, that is a community ground, community resource. Because ऐसा नहीं कि आप उस पर अपना घर बना लो, ठीक है, because that is community जो है आपका ग्राउंड है या फिर गवर्नमेंट का होगा. And third is on the basis of status of development, विकास के स्तर पे. जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं, है ना. तो इस बेसिस पर जो है आपके रिसोर्सेज हैं 4 तरह के, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स. तो इनको हमें जो है वन बाय वन बहुत अच्छे से केयरफुली जो है इसको हमें स्टडी करना है. उससे पहले हम ये जो है एक आपका और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. Resources are basically classified into natural resource and human resource. Natural resource में क्या आता है? Renewable, non-renewable. Renewable is further classified into continuous or biological. Biological is further divided into natural and wildlife. ठीक है. Then non-renewable is divided into recyclable and non-recyclable. Then human is divided into structure and institutions, quantity and quality. तो ये जो है एक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है जो उससे थोड़ा हटकर है. रिन्यूएबल का आप मतलब समझते हो क्या होता है? रिन्यूएबल मींस दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. लाइक आपने यहाँ पे देखा जो है विंड है, वाटर है. देन आपका रिन्यूएबल जो होता है उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब अगर एक बार वो खत्म हो गए तो उनको अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है. देन नॉन रिन्यूएबल में भी 2 तरह के होते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. जैसे कि आपका नॉन रिन्यूएबल में दोनों ही जो है आपके नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इनका जो है दोबारा लंबे ड्यूरेशन तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड है हमारे नेचर में, ठीक है. अब इसमें से भी है रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. अब जैसे मेटल्स हैं वो रिसाइक्लेबल हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आपके घर में गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या फिर आयरन होगा, तो अगर वो मान लो एक टाइम के बाद अगर वो मान लो थोड़ा खराब हो जाता है या फिर मतलब पुराना हो जाता है, तो हम उसको जो है सुनार को देके वापस दोबारा एक नया ले लेते हैं, या फिर हम सिल्वर को या हम आयरन को मोल्ड करके डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके नई चीज बना सकते हैं. उसको हम कहते हैं रिसाइक्लेबल. जैसे मेटल्स हैं, है ना, तो मेटल्स को हम रिसाइकिल करके दोबारा नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं. बट जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. अगर एक बार वो खत्म हो गए, मान लो हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, अब हम उसको यूज कर लिया हमने, तो क्या वो जो पेट्रोल जो खत्म हो गया अब वो दोबारा हम उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली है. तो ये हो गया आपका नॉन रिसाइक्लेबल. अब पानी है, पानी हमने पी लिया, तो क्या उसी पानी को हम दोबारा ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते, तो वो नॉन रिसाइक्लेबल है. तो ये हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल के 2 टाइप्स. क्या इससे आगे जो है हम दूसरे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अब हम ओरिजिन के बेसिस पे जो है अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वन इज बायोटिक resource and the other is abiotic resources. Now first we will go through the biotic resources. Can anybody tell me what do you mean by biotic resources? कोई भी बच्चा बता सकता है? Ma'am, which are something living organism, which are dependent on living organisms. Okay, so first of all like Veena answered that they are related to living organism. This is absolutely right. First of all you should know the meaning of this word biotic. Biotic means life. Bio means life, ठीक है. This word simply means life. So all the resources which have life in them, they are known as biotic resources.
These are obtained from biosphere and have life, such as human beings. We are also biotic resource because we have life. Flora, fauna. Flora means plant, fauna means animal. Fisheries and livestock. Livestock means cattle and sheep, goat. All these are known as livestock. So all the resources which have life in them and they are obtained from biosphere are known as biotic resources. Then second one is your abiotic. Abiotic which are non-living. All right, non-living are known as abiotic resources. All those things which are composed of non-living things. Remember this word, living and non-living. Non-living things are called abiotic. For example, rocks and metals. So rocks, metals, all these things they are resource, but they are abiotic because they are non-living थिंग्स, उनमें लाइफ नहीं होती है. तो ये बहुत ही सिंपल आसान है. ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एंड एबायोटिक, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग. तो ये हो गया. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया मैम? खत्म हो जाना. एक वेट, अभी किसने आंसर दिया? नाम बताइए, नाम बताओ, नाम बता के आंसर दो अपना. मैम तेजस्विनी. हाँ तेजस्विनी बताइए. मैम एंड होना. एंड होना. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब एंड होना, खत्म होना, समाप्त होना. ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो ये भी बहुत इजी है, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो. Renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, but you have to use these words. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है बेहतर वर्ड यूज करने हैं, लाइक रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, है ना, by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. Renewable and replenishable जो word हैं both mean the same, that is which can be used again and again. So आपको इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो आपको दो वर्ड याद रखने वो क्या है? रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. इन 5 वर्ड को आप याद रखो. रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, बहुत आसान है, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. मतलब ये कभी खत्म होने वाले नहीं है. बट इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे अब वाटर रिसोर्स है. वाटर रिसोर्स वैसे रिन्यूएबल था, लेकिन अभी नॉन रिन्यूएबल की भी कैटेगरी में जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से हमने इसका एक्सप्लॉयटेशन किया है उस तरह से अब वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं. स्पेशली जो फ्रेश वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, उसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही है. सो नाउ सम साइंटिस्ट दे आर कंसिडरिंग वाटर एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कि अगर हमने इसी तरह से वाटर को और ज्यादा इसको पॉल्यूट किया तो क्या हो जाएगा कि हम फ्यूचर में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मतलब हमारे लिए वाटर की शॉर्टेज अभी आप समझ लीजिए पूरे विश्व भर में लोग पानी के बिना परेशान है. सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these occur over very long geological time. अभी आपको याद करना है, long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि these resources these occur over very a long geological time. It means ये जो resources है उनको बनने में काफी they take a very long geological time in their formation. For example, metals, then your fossil fuels, कोल जैसे, फॉर एग्जांपल कोल है, आयरन ओर है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है. ऑल दिस रिसोर्सेज दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन. द नेचुरल रिसोर्स, द कोल, आयरन और द मिनरल्स व्हिच वी आर यूजिंग राइट नाउ, they have been formed since million of years back. उनका जो फॉर्मेशन है वो मिलियंस ऑफ इयर्स बैक ही वो स्टार्ट हो चुका होगा, जो आज आपको सामने दिख रहा है. ठीक है ना. ऐसा नहीं होता है कि 1 साल में, 2 साल में, 100 ईयर्स में ये बन सके. जो स्टॉक अभी हमारे पास है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के नीचे दबा हुआ डिफरेंट कंट्रीज में, वो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है. और अगर वो खत्म हो गए तो हमें समझ लो कि अभी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स तक हमें ये दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगेन उनको बनने में टाइम लगता है. That's why they are known as non-renewable resources, because their rate of formation is very slow and they take millions of years in their
formation a very long geological time. So you have to use these words that these resources take millions of years in their formation. Their rate of formation is very slow. They take a long geological time. For example, minerals and fossil fuels. Minerals, you know about minerals, iron ore, manganese, all these are known as minerals. Whereas fossil fuels are जीवाश्म ईंधन. जीवाश्म मतलब जो कि आपके लिविंग थिंग से बनते हैं, लाइक कोल. कोल आपको पता है पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से बनता है. और नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम जो है, वो जो आपके डेड रिमेन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, उनकी हड्डियों के सड़ने के बाद बनता है. ठीक है, तो ये लिविंग थिंग से बनते हैं, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. फॉसिल अवशेष, जीवाश्म ईंधन से. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बट यू हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड. नाउ देन अगेन सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉन रिन्यूएबल में आपके रिसाइक्लेबल होता है एंड नॉन रिसाइक्लेबल होता है. मिनरल मेटल्स जो होते हैं आपके रिसाइक्लेबल है, लाइक स्टील है, चाहे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर, दे आर रिसाइक्लेबल. वी कैन यूज देम अगेन, वी कैन मोल्ड देयर शेप, we can convert them into different forms, we can again use them. But on the other hand, petroleum, natural gas, once they are used, they cannot be recycled, so they are non recycled resources. Now next is on the basis of ownership. So I hope आपको दो classification समझ में आ चुका होगा, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility. Now the third classification is on the basis of ownership. On the basis of ownership, we have individual resource. इंडिविजुअल रिसोर्स मीन्स कि प्राइवेटली ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल. ये आपको वर्ड यूज करना है. दीज आर, क्योंकि बहुत बच्चे जो है समझ तो जाते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल, बट उसको लिखते नहीं है ठीक से, वो बहुत ही गलत तरीके से उसको लिखते हैं. तो आपको ये वर्ड याद रखना, दीज आर ऑल्सो ओन्ड privately by individuals. So the resources which are privately owned by individuals are known as individual resources. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. For example, एक किसान है जिसकी जमीन है ना, आप गांव में जाते हो तो आप देखते हो जो है डिफरेंट किसान से उनकी अपनी अपनी प्लॉट्स एंड लैंड है, तो वो क्या होगा, उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि उन्होंने उसको पैसे देकर खरीदा है. देन इन अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी. अब शहरों में क्या होता है कि हमारे प्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे तो खेत होते नहीं है, तो हमने घर खरीद रखा है या प्लॉट्स खरीद रखा है, तो वो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई. Then plantation, pasture lands, pond, water and wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals. और जो बहुत अमीर होते हैं भाई, वो तो एक पॉन्ड भी खरीद लेते हैं, कुआं भी खरीद लेते हैं, है ना, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. So basically, individual property means any property owned by a single individual or group of individuals. They are known as privately owned property. For example, land, plot, or farm by the farmers. So these are the examples of private properties. Now next is your community owned property. Community means group of जो होता है आपके, जैसे विलेज है आपका, है ना, तो विलेज के सारे लोगों को वो बिलोंग करता है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस को बिलोंग करती है वो प्रॉपर्टी. These are resources which are accessible to all the members of the community. अब जो भी कम्युनिटी है वहां पे, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है, आसपास के टाउन्स भी हो सकते हैं, है ना, तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसपे कम्युनिटी के हर मेंबर का बराबर का अधिकार होता है. कोई भी फैमिली ऐसे नहीं कर सकती कि भाई ये हमारा है या फिर ये इस पे कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसमें सबका बराबरी का अधिकार होता है. विलेज कॉमन्स, विलेज, अगर आप गांव में कभी जाओगे, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के गांव है, वहां पे आप देखना कि हमेशा खलिहान होते हैं. खलिहान मतलब कि गांव के मिडिल में या गांव के स्टार्टिंग में ही कोई ऐसे बहुत बड़ा एक आपका ग्राउंड होगा जो खाली होता है, और वहां पे मेला लगता है, या फिर शादी ब्याह होता है, या फिर बारात आती, तो लोग मेहमानों को रुकने के लिए वहां पे कहा जाता है ना, तो उसको वो आपका कॉमन कम्युनिटी ओनरशिप हो गया. देन ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे लाइव स्टॉक जो है चारा खाने के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए जाते हैं, तो वो भी कॉमन होता है. ब्यूरियल ग्राउंड्स, ब्यूरियल की जहाँ से जो बॉडी को दफनाया जाता है या जो भी किया जाता है. देन विलेज पॉन्ड, तो गाँव का जो पॉन्ड होता है, ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसपे सबका बराबरी का अधिकार होता है, कोई भी उसपे मतलब जो है अपना ओनरशिप उसको नहीं कर सकता. देन पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स जो है, अगर हम शहरों की बात करें तो जो आपके पार्क्स होते हैं, पब्लिक स्पॉट्स होते हैं, और भी आप फील कर, प्ले ग्राउंड है ना, जैसे अब आपके सामने देखिए आईडीपीएल में कितने सारे प्ले ग्राउंड है, 3-4 प्ले ग्राउंड है, तो वो कोई एक नहीं कर सकता फैमिली की भाई हम तो यहाँ खेलेंगे, या फिर जो वहाँ के घर है वो कहेंगे हम ही यहाँ खेलेंगे, वो सबके लिए. सो प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज, पार्क्स इन अर्बन एरियाज, ये सब जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप. कम्युनिटी हॉल भी आपका, यहाँ पे कोई शादी ब्याह हो तो वहां पे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको. Then next is on national resources. National resources, technically all the resources belong to the nation.
द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। अब एक मान लो सपोज आपको इंडिया का मैप पता है, ठीक है, जो भी मान लो, मैं तो जैसे ऐसे एग्जांपल बना रही हूँ, तो सपोज ये इंडिया है। अब इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, दे बिलोंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। उस पे किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट का, मतलब एज ए भाई सिटीजन का ही होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारी सरकार करती है। तो वो किसको बिलोंग करता है? इंडिया एज ए कंट्री। सो हमारे जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं, दे बिलोंग टू इंडिया, वो इंडिया का है, ठीक है। सो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज लीगल पावर। इनफैक्ट अगर मान लो कोई कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या कुछ भी डेवलपमेंटल वर्क है, तो उसके पर्पज के लिए सरकार जो होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकती है। ऐसा कम ही होता है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ओन किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन, अब ऐसे आपने बहुत बार देखा है कि कहीं से सड़क निकालनी होती है या कहीं कोई कैनाल बनाना होता है, कहीं रेलवे लाइन बनानी होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो और वहां पे मान लो कि किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, मान लो खेत है या आपका कोई प्लॉट है, तो उस केस में सरकार ने अगर मान लो नक्शा बना दिया, ठीक है। अब मान लो आपके ये ऋषिकेश जो है, यहाँ से आपको पता है ना, ये आपके ये कहाँ की रेलवे लाइन बन रही है आगे, किसी को पता है? कर्णप्रयाग है ना, पता है आपको? यहाँ पे जो आगे एक रेलवे लाइन जो आगे जा रही है वो कर्णप्रयाग तक जा रही है। तो अब ये जो रेलवे लाइन जहां तक बन रहा है, तो इसके बीच में जितने भी गांव आ रहे हैं वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको पैसे दे दिए हैं, उनको कंपनसेशन दे दिया है, उनको उसके बदले का जो भी उनका बनता था वो देके, और वो सारी जमीनें सरकार ने क्या किया, उनसे खरीद लिए, ओन कर लिए। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार ने ओन कर ली है, क्योंकि वहां से रेलवे लाइन जो है पास करनी है, बनानी है। तो आप देख सकते हो कि फॉर डेवलपमेंटल पर्पज गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ओन कर लिया। सिमिलरली कहीं मान लो सड़क बनानी है और वहां से कोई गांव है या वहां पे खेत बिछे हुए, उस केस में भी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, उनको उतना जो है मुआवजा देकर और वो जमीन खरीद लेती है और वहां पे सड़क बना देती है। या फिर आपने टिहरी डैम के बारे में सुना होगा, डैम के पीछे तो बहुत ज्यादा बवाला होता रहता है कि जब डैम बन रहा था तो सरकार ने क्या किया, वहां के टिहरी का जो भी जो एरिया था, गांव वालों को वहां से हटा दिया और उनको उसके बदले कंपनसेशन दिया, पैसे दिए, और फिर लोग वहां से चले गए और तब जाके वो बांध बनाया गया है। तो पब्लिक जो है डेवलपमेंट वर्क के लिए सरकार जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. So जो भी हमारे इंडिया या मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड में कहीं भी जो है एक देश के अंदर जो इंटरनेशनल सीमा के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट और उस कंट्री को बिलोंग करते हैं। और अगर पास में समुद्र है, जैसे हमारे इंडिया के पास क्या है, चारों तरफ तीनों तरफ समुद्र है, तो वहां पे 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है, सीमा से, मतलब जो कोस्टल एरिया है वहां से, जैसे कि इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो यहाँ से लेके ये कोस्ट है, यहाँ से लेके कम से कम 19.2 किलोमीटर तक जहां भी तक जाता है, वहां तक पूरा इंडिया का वाटर बाउंड्री मानी जाती है, पूरी इंडिया की वाटर बाउंड्री है, ठीक है। ये पूरी इंडिया की वाटर बाउंड्री है और यहाँ पर इंडिया जो है अपनी शिप चला सकता है। यहाँ पर रिसोर्सेज को जो है, जैसे आपको मालूम है ना कि हम इंडिया का सबसे बड़ी जो ऑयल एरिया है वो है आपका ये मुंबई हाई आपका अरब सागर में है, और यहाँ से हम तेल निकालते हैं, है ना। 63% हमारा जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस यहीं से हमें मिलता है। तो यहाँ की जो मरीन रिसोर्सेज हैं, मरीन मतलब पानी, समुद्र का पानी जो होता है उसको मरीन कहते हैं। मरीन रिसोर्सेज लाइक फिश हैं, कोरल्स हैं, है ना, और भी मैंगनीज है, सॉल्ट है, मैन्युफैक्चर करना, तो ये जो भी है ये हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन 19.2 के बाद वो इंटरनेशनल सीमा स्टार्ट हो जाती है बाउंड्री, और फिर हम वहां तक नहीं जाते, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल रिसोर्सेज, पानी पे में भी होता है और अंदर तो है ही। तो ये हो गया आपका नेशनल रिसोर्सेज। Now next है हमारा international resources. These are international institutions which regulate some resources. The oceanic resource beyond 200 km of the exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institutions. तो ये कहा जा रहा है कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका WHO है या UNO है या फिर और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके अंडर में है। और दूसरी जो कंट्रीज हैं, उस जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय जो रिसोर्सेज हैं उसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्वामित्व, ठीक है।
तो ये आप इसको पढ़ लोगे तो अब क्योंकि 5 मिनट बचे हुए हैं, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें दिया हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि मान लो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इंडिया का जो है यहाँ से लेके 19.2 किलोमीटर तक जो है समुद्र में इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उससे लेके 200 और अंदर समुद्र के अंदर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे कोई भी देश जो है उसको यूज कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया के इधर पाकिस्तान भी यहाँ पे आ सकता है, बांग्लादेश भी यहाँ आ सकता है, कोई भी देश यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद क्या होता है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर में आ जाता है, फिर यहाँ पे कोई भी देश नहीं आ सकता है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और किसी को आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जितना मैंने आपको बताया है उतना आप नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। बहुत डिटेल में नहीं बनाना है, ठीक है। और कल तक मैं जो है ये चैप्टर, लेकिन वैसे ये चैप्टर काफी लेंदी है, लेकिन इस वीक में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं इसको क्लास को वो करती हूँ, और आप इसमें नोट्स बना के और अपनी अटेंडेंस भी दे देंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे जो भी बच्चे प्रेजेंट थे। ओके, थैंक यू क्लास। जय मैम। हेलो हेलो।